A very good morning to one and all present here. I, Anushka Vishwal, the student of BBA LLB, take this opportunity to welcome you all on behalf of Center for Legal Studies, Geeta Rattan International Business School on this alumni lecture series. Geeta Rattan International Business School was established in the year 2004. GIBS is affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi. The Center for Legal Studies, Geeta Rattan International Business School conducts law courses of BBA LLB and BLLB, which are approved by Bar Council of India, and management courses by All India Council for Technical Education, Ministry of HRD and Government of India. The institute is accredited as Category A by NARC and assessed as Category A+ by State Free Regulatory Committee, a fee committee of Government of NCT of Delhi, and rated highest grading A by Joint Inspection Committee of Government of NCT of Delhi and Guru Gobind Singh Indraprastha University. The institute has been graded A by Academic Auditors of GGS-IPU consecutively for last 8 years. GIBS has also been rated number 2 by Times B School Survey in 2019 and in 2021. The Institute's Innovation and Entrepreneurship Cell introduced Alumni Lecture Series as a platform to give a practical insight of legal sector by alumni to the final year law students. We invite alumni to talk about their experience in their law field. The topic for today's Alumni Lecture Series is Professional Skills Required for Success. And for today's session, we are honored to have with us Advocate Shrishti Kalra ma'am and Advocate Sanat Saluja sir as a resource person for today's session. So today's first speaker is Shrishti Kalra ma'am, who is the legal advisor at Bank of America. She has accumulated sound experience in different fields of law, which are litigation, publication house, government organization, etc. She has done legal research and preparation skills to work on dynamic case laws and has also maintained good academic records during her college. She is also capable of doing legal drafting, legal research, handling miscellaneous work, organizational work, analysis of case laws and procedural work. Apart from law degree, she has also done a certificate course which specializes in intellectual property rights law by World Intellectual Property Organization and has also attended moot courts in her college, which has given her good writing, communication and analytical skills. Now we are honored to have you here. So I request Dr. B.K. Yadav sir to give the sampling to our honorable guests. Important aspect of the trust to make and mainly recommendations to support trust officer across US. Regarding trust document and my roles are reading trust documents and identity administrative exceptions, interaction with onshore business partner or line of business, and to face trust officer and trust administrative officer with respect to the trust and estate administrative role. Apart, that is my role of Bank of America, and layman language in Bank of America, I do read trust documents and their documents of the bank which they have and advise them the field of law and anything like that. Participated in moot court in our college only and with the Judge Dicer also. I have a certification on General Course of Intellectual Property Right by World Intellectual Property Organization, where I have been specialized in ITR. I presented my dissertation in the last semester on the topic of sexual harassment on the workplace. Maybe you won't want to go to the practice, so the way to possess clarity is only internships that you do in your graduation. And to try each field of law in an internship to possess clarity, like I said, do justice with your time, increase skill set, but to write professional time, you must acquire the ability with hard work and profession. The journey of 1,000 miles begins with one step. I never believed that I would be in Bank of America with a starting. I never believed that I would have a brand name. I would join a brand name shortly after my graduation. I never believed that, but that happened to me. So the journey of 1,000 miles begins with one step.
I am proud to be the part of GIBS, and I really hope that my juniors take GIBS to the new heights and grow out to be the best version of themselves. Thank you. This session. Now the floor is open for question answer round. So if anyone has the questions to ask from us, you may. Anyone? It seems no questions. So moving on to our next speaker for today's lecture series, we have Advocate Sanat Saluja, who is currently an apprentice at Gale India Private Limited. He is skill driven with strong work ethics and experience in working wide variety of genre. He has leadership and teamwork skills as well as the ability to do here today, sir. So I would like to invite our director, sir, to give a welcome to our honorable guest. Thank you so much, sir. Now I would like to request Sanat sir to take forward the session. Hi, good morning everyone present here, respected director sir, faculty members and students from Law Stream. I thank Geetharathan International Business School for giving me this opportunity to present my experience, my views on today's topic, that is professional skills required for success. Currently, I am working in Gas Authority of India Limited, known as GAIL India Limited, and at a position of executive law under an apprenticeship program for 1 year. I am grateful to the management of Center for Legal Studies, Geetharathan International Business School, VC sir, Dean ma'am, director sir. So directly starting with today's topic, just I would let you all know, there's one policy that I follow. That policy is LWT, lead without title. I think I will make this. Am I audible till the end? Yes. Yes, we'll make this session interactive one. Okay. Title. The first formula that I personally follow and I would recommend you all to follow is lead without title. You know, success एक ऐसी चीज है जो किसी भी मोमेंट पे मिल जाती है. मैं घर से निकला, मैं कॉलेज तक आ गया कि आज की सक्सेस रही कि ठीक है इतनी बारिश होने के बाद भी मैं आ गया. I was unable to book a cab also, but सक्सेस क्या रही आज की? कि मैं एटलीस्ट आ तो गया वेन्यू पे. ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ मेरी वजह से. ओके, सो हमें टाइटल के पीछे नहीं जाना. अगर हम डे टू डे बेसिस पे अपने टास्क को अचीव करते रहेंगे तो वन डे टाइटल हमें खुद ही मिलेगा. अब अगर हम आज से सोच के बैठेंगे कि मुझे कल को ये टाइटल चाहिए तो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके चल रहे हैं. लाइक मुझे XYZ पोजीशन पे जाना है तो क्या बस मेरा वही एक टारगेट है, मुझे उसके आगे जाना है या नहीं जाना. सो देयर आर वेरियस स्किल्स दैट वी नीड टू नो. हमें उसको अडैप्ट करना है, अपने लाइफ में लेके आना है. जब ये 5 इयर्स का ग्रेजुएशन टेन्योर चल रहा था, मैंने इसके अंदर न्यूमरस इवेंट्स के अंदर पार्ट लिया. काफी लोग यार जानते भी होंगे, मैम भी हैं जो लोग प्रेजेंट थे तब से, तो दे ऑल नो. सो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जल्दी की बात नहीं है. इट्स जस्ट दैट आप फॉलो करो, एक वाइब के साथ चलो. ये बहुत कैजुअल टर्म्स के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ. आप वाइब के साथ चलो, आप अपने आप अडैप्ट होते जाएंगे. मोreover, always believe in yourself and believe in your institution. Currently we all are in, like you all people are in Center for Legal Studies Geetharathan in Law Stream. So always believe in your institution. अगर हम इंस्टीट्यूशन में बिलीव करेंगे तब इंस्टीट्यूशन हम में बिलीव करेगा. सब लोग लॉ कर रहे हैं, हम इस बैच की भी बात कर रहे हैं. सब लोग यहाँ से BA LLB और BBA LLB पास आउट ही होंगे, राइट? बट इससे अलग कैसे निकला जाएगा? अलग तब निकला जाएगा जब हमारी ग्रोथ होगी. एंड ग्रोथ किस बेसिस पे होगी? ग्रोथ इस बेसिस पे होगी जब हम फॉलो करेंगे FMOB. दिस इज द सेकंड मंत्र आई फॉलो. दैट इज द फर्स्ट, F से द फर्स्ट, M से द मोस्ट, द ओनली एंड द बेस्ट. FMOB. अब कैसे? मैं फर्स्ट कैसे आऊंगा? जब आई डू माई टास्क रेगुलरली, आई रिपोर्ट टू माई अथॉरिटी रेगुलरली. मैं हर चीज को करेक्ट वे से अडैप्ट करूंगा. सी, नेगेटिविटी अगर हम अपने काम में लेके आएंगे तो हम कभी एक्सेल नहीं कर सकते. नेवर क्रिटिसाइज योर वर्क. एक लर्निंग स्टेज है, आज भी हम सब सीख रहे हैं इंक्लूडिंग मी.
मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, बट ये चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उस चीज को अडेप्ट करें। क्रिटिसिज्म जो है हमें 10 स्टेप्स नीचे गिरा देगा, और जहां हमने एक छोटा स्टेप अभी लेना होगा, तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी है हम फर्स्ट कैसे हो। अगर हम फर्स्ट हो गए तो हम द मोस्ट वाली कैटेगरी में ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएंगे। हमने ऑटोमेटिकली जब मोस्ट में फॉल कर गए तो हमारे अलावा कोई है ही नहीं, हम ओनली भी हो गए, एंड बेस्ट का टैग हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो दिस इज द पॉलिसी वी नीड टू फॉलो। एंड यस, डू जस्टिस विद योर टाइम। सी सारे आई थिंक फाइनल ईयर में है, 5th ईयर है अभी करेंटली। सो ये जो टाइम है, आई थिंक ये टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे और लिए भी जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट करेंटली इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे आप में से कई लोग हैं, आई होप आज भी इस सेशन के बाद कई लोग कोर्ट जा रहे होंगे, कोई लीव लेके आया होगा जैसे भी। सो काम करते रहना है, काम से नहीं रुकना। संडेज आर मेंट टू बी एंजॉयड, दैट इज अ गुड थिंग, मैं भी यही फॉलो करता हूँ। बट कोई भी ऑफ है, इफ अगर सैटरडे संडे का ऑफ है तो सैटरडे ट्राई टू डू इंटर्नशिप, वीक को यूज करो, सैटरडे ऑफिस अप्रोच करो। मैंने ये पॉलिसी यूज करी कि ईयर के अंदर कम से कम 3 to 4 इंटर्नशिप्स करनी है। बाय द एंड ऑफ दिस 5-year BLLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैंने अराउंड 13 to 14 इंटर्नशिप्स कर ली थी, वो भी एक जगह नहीं, अलग अलग जगह। क्यों अलग अलग जगह? ताकि मुझे हर पर्सन से कोई एक नई स्किल सीखने को मिले। मेरी पहली इंटर्नशिप जो थी दैट वाज इन MACT। सर जो थे वो MACT इंश्योरेंस के क्लेम्स लेते थे एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल का। तो सर से क्या सीखने को मिला? सर की एज जो थी वो अबाउट 60 थी, 65 के अराउंड। उनका जो थिंकिंग का जो प्रोसेस था वो अपने एज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग था। फिर मैंने एक करी बिल्कुल 25-26 की एज के थे, न्यूली मैरिड, उनका एक अलग। तो जितनी इंटर्नशिप्स करता गया उतना सीखा। देन फर्म में करी, अब फर्म के अंदर टोटल रिवर्सल हो गया, कहाँ डेली के केसेस देखने, ऊपर से नीचे भागने, इधर कॉर्पोरेट के अंदर जब गया तो वहां तो सारा कंसेप्ट अलग हो गया। नाउ देयर इज अ डेस्क जॉब, यू नीड टू फाइंड रिसर्च, यू नीड टू डू केस लॉज, हर चीज करनी। उसकी स्किल्स कहाँ से आएंगी? उसकी स्किल्स कॉलेज से आएंगी। सी आज का दिया हुआ काम अगर कॉलेज में कोई दे रहा है तो कंसिडर कि आपकी एक स्किल ही बनेगी। यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन ईच एंड एवरीथिंग। सी यहाँ से जो लेके जाओगे वो आगे तक एक्चुअली काम आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम कुछ भी कहें किसी को भी, हमें कुछ नहीं मिलता, ये है वो, सारी बातें एक तरफ। एट द डे एंड सबको इंटरनली पता है कि जहाँ पे आए हैं वहीं से सब कुछ मिलना है। जितना मैं यहाँ से सीख के गया हूँ वो ऑनेस्टली मेरे को 100% अभी भी काम आ रहा है। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही, अभी भी काम वही आया है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली गेल ज्वाइन किया तो मैंने जितनी इंटर्नशिप्स करी मेरे को वहाँ पे डेली केसेस का पता था, लिटिगेशन का ही ज्यादा पता था। मैं कभी किसी MNC या PSU में इंटर्नशिप तो मैंने करी ही नहीं। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैंने गेल ज्वाइन किया। वहाँ जाके मुझे डेस्क अलॉट हो गया, मुझे काम अलॉट हो गया। अब सीखने के लिए तो मुझे टाइम चाहिए, हाउ थिंग्स वर्क, किसको रिपोर्ट करना कैसे, बट वहाँ क्या चीज़ काम आई? वहाँ ये चीज़ काम आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं, कैसे अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं। आपको प्रोसेस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हमें नॉलेज प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल नॉलेज हो, हमें हर एस्पेक्ट से नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। मोरओवर यस, अपने अंदर कोई एक ऐसा टॉपिक, ऐसी हॉबी कहें या कोई भी ऐसी स्किल कहें, वो अडेप्ट करनी, वो अपने अंदर लानी इतनी ज्यादा जरूरी है कि वही आगे जाके एक्सेल होती है। एक हम में से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्वर है, हमें किसी को भी आता है कि हाँ हम प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूशन में लाके एंड में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मार्क माय वर्ड्स, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही टैग से एंटर हो जाओ। जो ये 5 साल का है, अगर आप में से किसी ने किसी भी इवेंट के अंदर पार्ट लिया है या कुछ भी एक्सपीरियंस किया है तो आप सबको पता है कि ये चीजें वर्क कैसे होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं यहाँ पे करेंटली, जैसे ई प्लेटफॉर्म्स हैं, लॉ पेजेस हैं, लॉ इवेंट्स चलाते हैं, दे आर पार्ट ऑफ मेनी अदर प्रोग्राम, सो दे नो हाउ टू डू देयर थिंग्स। मुझसे ज्यादा अच्छा पता होगा क्योंकि आप उस चीज से डील कर रहे हो। तो जब आप वो किसी चीज को सिखाओगे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। My mentor used to say me usually कि art of listening is much more important than art of speaking. इंसान गले से तान से ना हो, कान से होना बहुत जरूरी है। The only reason why, जब तक आप सुनना नहीं सीख
सीखोगे आप बोलना ही नहीं सीख सकते। हमने पहले सुना तो बोलना सीखे। सिमिलरली ये पॉलिसी मैं करेंटली अभी जब गेल ज्वाइन की ज्यादा फॉलो किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास सुपीरियर्स है वहां सारे, सब मेरे बॉस हैं, आई एम द जूनियर वन देयर। तो पहले मैं जब तक सुनूंगा नहीं, सीखूंगा नहीं, उसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं एक स्टेज आप आ ही नहीं सकता। सो जब से मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, काफी सारे इंटरव्यूज दिए, अब वहां बात ये आती है कि आपके पास क्या स्किल्स है। तो क्या स्किल्स है? डे 1 कॉलेज का याद करो और डे अब जैसे से एंड आ रहा है ये याद करो, एक बार नोट डाउन करो क्या सीखा क्या नहीं सीखा। एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबको पता है। सी अपनी तारीफ के अपने बारे में कभी भी गलत मत हो। क्यों? क्योंकि आज कह दोगे शायद कल सिलेक्ट भी हो जाओ, बट जब वहां बात एग्जीक्यूशन की आएगी यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म एट ऑल। मुझे जो चीज नहीं आती मैं क्लियरली कहता हूँ। क्यों? क्योंकि कल को मुझे वो टास्क कह दिया गया, इसे क्वेश्चन का कुछ ओके, किसी ने मुझे वो टास्क दे दिया, अब मुझे नहीं आता तो क्या होगा? एक पॉइंट पे नीचे आ जाऊंगा। सो इसका फायदा नहीं है। अगर हम प्रोफेशनल स्किल्स की बात करें तो सबसे पहले, अगर आज के टाइम की बात करें तो सबसे पहले लिसनिंग तो बेस्ट पॉलिसी है। यू शुड बी अ प्रॉब्लम रिजॉल्वर, नॉट अ प्रॉब्लम क्रिएटर। अगर आपके थ्रू सी इंटेंशन अपॉइंट हो रहा है उस फर्म के अंदर, काफी टाइम से वर्क करते हो, दे आर ऑलरेडी कंसीडरिंग यू अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको वहां पे आज से बॉन्ड क्रिएट करके रखना है। सो दिस विल हेल्प इन नियर फ्यूचर। क्यों? आपके कनेक्शंस इतने ज्यादा होंगे। व्हाट आई पर्सनली फॉलो कि मैं जिससे मिलता हूँ, लाइक आफ्टर दिस ग्रेजुएशन जिससे मिलता हूँ, आई मेक श्योर कि मैं अपना नंबर एंड अदर कॉरेस्पॉन्डेंस के मीडियम जितने सारे एक्सचेंज करके रखूं। क्यों? किसी भी पर्सन की किसी भी टाइम नीड हो सकती है। पर्सनल ग्रजेस को ये टाइम नहीं है कि हम बढ़ाएं, आपस के अंदर भी जिसके ग्रजेस हैं उसको सेट असाइड किया जाए। एक प्रोफेशनलिज्म अब अडैप्ट करने का टाइम आ चुका है, उसको इनहेरिट करें, एक प्रोफेशनल कंडक्ट को हम एस्टैब्लिश करें और आगे बढ़ें। आप में से ही जैसे हम सब हैं, मुझे इनका नाम जैसे नहीं पता, बट आज मेरी इनसे बात हुई है, कल ही मुझे कोर्ट में मिल गए, मेरे मैटर आई कांट बी प्रेजेंट जब कहीं और जाना, ये मेरी जगह ऐसा प्रॉक्सी काउंसिल होंगे। अब ये मेरे लिए क्यों जाएंगे? मेरा इनसे कोई बॉन्ड नहीं है जब भी, बट अब एक बार हमारी इंटरेक्शन हो चुकी है, मैंने इनसे एक फेवर मांग लिया, फिर अब फेवर्स हम वो करते रहेंगे, बट इन अ प्रोफेशनल सिनेरियो ओनली। So this is the most important thing that we need to follow. Afterward, leadership skills. See, leadership skills हर एक में होती हैं, या तो बाहर आती हैं या नहीं आती। तो जिसमें बाहर आती हैं वो पता चल जाता है, जिसमें बाहर नहीं आती वो बैक स्टेज बहुत अच्छा काम करता है। This is the best thing I know. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर कोई सेम लेवल पे एक्सेल करे, हर कोई स्टेज पे आ जाए। कई लोग बैक स्टेज इतना अच्छा काम करते हैं, बैक स्टेज लोगों की वजह से ही ऑन स्टेज के ऊपर जो लोग खड़े हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि कोई किसी से कम नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हमें अपने अंदर की क्वालिटी कब पता चल रही है। नाउ क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ओपन माइंडेडनेस। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जाते हैं, बी इट हम लॉ फर्म में जा रहे हैं, किसी एडवोकेट के पास जा रहे हैं, एमएनसी में जा रहे हैं, कॉर्पोरेट में, किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं जहां पे हम लीगल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो हर एक के जो थॉट प्रोसेस है, हर एक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट है। मे बी सिचुएशन ए सिचुएशन बी से मैच नहीं करेगी। सो व्हाट टू डू दैट टाइम, हमें दोनों चीजों को सुन लेना है। इफ द पावर इज विद ourselves then we have to decide either from option A or to B। अगर हमारा कोई सीनियर सामने है एंड अथॉरिटी उनके पास है, हम सिर्फ एज एन ओपिनियन देने के लिए बुलाए, अपना काम करें एंड लेट दैट पर्सन डिसाइड क्या करना है क्या नहीं। ओवर पावर एक सबसे बड़ा सेटबैक होता है आपकी डेवलपमेंट के अंदर। पावर का मिसयूज हर एक को पता है कि कोई बेनिफिट नहीं देता। ऑब्वियसली टीम वर्क जो है वो एस्टैब्लिश करता है प्रोफेशनलिज्म को। अगर हम आज की बात करें, कोई भी अगर कहीं भी अप्लाई करेगा, आप अपनी सीवीज बनाएंगे, रिज्यूमे क्रिएट करेंगे, तो उसमें स्किल्स का सबसे पहले आएगा, योर फोटो, नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशंस। देन सबसे पहला कॉलम भी कॉल करता है स्किल्स क्या है आपके पास। तो स्किल्स में क्या मेंशन करोगे? जो यहाँ से सीखा, दैट इज ड्राफ्टिंग, नॉलेज, कोर्सेज जो करे, उसके बेसिस लाइक एमएस एंड ऑल हम सब मेंशन कर देते हैं। उसके बाद क्या करोगे? यू विल मेंशन लीडरशिप स्किल्स, प्रॉब्लम रिजॉल्वर, ठीक है, एबिलिटी टू डू मल्टीटास्किंग, ये सब लिखोगे। बट क्या एक्चुअली हम ये लिख रहे हैं, आता है, हम कर पाएंगे? सो दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर हम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, जो लोग डेली केसेस से कर रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग ऑलरेडी कर रहे हैं। लिटिगेशन में कितने लोग हैं करेंटली?
जो रेगुलर इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, so they all know how to do multitasking, right? कोड A एंड कोड B तक कैसे जाना है, 12-5 में 2 मैटर है तो कैसे दोनों को हैंडल करना है, they know. बट अगर वहाँ पे 3 इंटर्न्स हैं तो अब वहाँ पे बात आ जाएगी टीम वर्क की. आपको एक साथ ही चलना है, अदरवाइज आप चेस खेल रहे हो, आप जल्दी से बाहर हो जाओ. ऑलरेडी ब्लैक एंड व्हाइट होता है. सो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स. अब आज का जो सिनेरियो है वो हमेशा पूछते हैं कि आप टेक्नोलॉजिकल वे से कितना ज्यादा एक्सेल कर चुके हो. नहीं, मैंने जब से अप्लाई करना स्टार्ट करा है, आज भी कर रहा हूँ, करता रहूंगा, तो उसके अंदर ऑलवेज आस्क कितनी तरह से आप सोफिस्टिकेटेड हो, आपको कितना मल्टीटास्किंग आता है टेक्नोलॉजी को लेके. लाइक एक टाइम पे अगर हम आपको ड्राफ्टिंग दे रहे हैं, डेटा एनालिसिस दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, आप कर सकते हो कि नहीं. अगर आपका उसमें भी एक में भी टिक नहीं होता ना, they tell you कि ठीक है, we'll consider, we'll let you know, that means there is a no. तो this is the best time e-courses के लिए सब्सक्राइब किया जाए. You should register yourself. एक मंथ के कोर्स होते हैं. Do as much e-courses as you can. This is the best time. क्योंकि सी एक बार ग्रेजुएशन हो जाएगी, then कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, फिर टाइम नहीं मिलेगा. मैंने अपने 5th ईयर तक आते आते 4-5 कोर्स फ्रॉम 4th एंड 5th ईयर करते 4-5 ई कोर्स ऐसे कर लिए कि ठीक है, मैं किसी को बोलूं तो ये तो ना हो कि बस खाली है, बस एक ही ई कोर्स करके इसका क्या रेलेवेंस. कोर्सेज वो करने हैं जो आगे की स्ट्रीम में हमें एक पुश दे. फॉर एग्जांपल, जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का करते हैं, जो लिटिगेशन में जाते हैं वो ड्राफ्टिंग एंड ऑल का करते हैं. बट करना जरूरी है. सी अगर आप एक एडवोकेट के पास हो, ही माइट नॉट आस्क कि आपने क्या कोर्स करा है, बट आप किसी अच्छी फर्म के अंदर जा रहे हो जो कि अगेन लिटिगेशन बेस्ड है, he or she or that firm will definitely ask आपने क्या करा है. 5 साल का अगर आपका जो टेन्योर है ये तो इस ग्रेजुएशन का, तो जब आप इसकी CV या रिज्यूमे क्रिएट करोगे, that should be only of 2 pages maximum only. किसी के पास टाइम नहीं. मैंने भी यही गलती करी थी, 6 से 7 पेजेस की इतनी लंबी कहानी बना दी थी. देन मुझे एक दिन किसी ने सजेस्ट करा, सॉरी हम ये नहीं पढ़ सकते, I felt so bad. तो हम ये नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि आपने बहुत लंबा पेज दिया, कौन पढ़ेगा इतना? 2 पेजेस का. तो देन मेरे को 1 हफ्ता लगा, क्या डालूं क्या ना डालूं. मेजर पॉइंट्स, योर नेम, बेसिक क्वालिफिकेशंस, करेंटली आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, देन आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, देन योर पब्लिश, कितने डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए हैं, जर्नल्स, आर्टिकल्स एंड ऑल योर इंटर्नशिप, दैट्स ऑल. इसके अलावा तो बहुत अच्छी चीज है ऑब्वियसली कोर्सेज, तो आप मेंशन करो. इंटर्नशिप जब भी कोई भी करे, जस्ट ट्राई कि वहाँ पे एज मच एज पॉसिबल लॉन्ग टेन्योर के लिए करें. अगर 2 मंथ का गैप आया था, जैसे पीछे आया था, इस सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले बहुत लोगों ने स्विच कर दिया लगा था, तो एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देती है. आप एक लॉयर के पास XYZ उनका नेम है, उनके पास कर रहे हो और काफी टाइम से कर रहे हो, तो ये आपकी इंटर्नशिप में शो होता है कि आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हो तो आप लॉन्ग टाइम के लिए रहते हो. कल को एक माइंडसेट क्रिएट होगा कि अगर आप वहां चले गए हो, लाइक एक किसी भी कंपनी में गए हो किसी और पास, तो वो ये देखेगा ना कि इसने जहां पिछली बार काम किया तो लंबा टाइम था, अगर मैं इसको हायर करूंगा तो फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए कर सकता हूँ, ये अडैप्ट करेगा मेरी कंडीशन. और व्हाट इफ कि अपने हर 2 दिन 3 दिन का नहीं पसंद नहीं छोड़ दिया. सी ये जो टाइम है आपको भागना भी पड़ेगा. मैं भी अपने ऊपर भी ये अप्लाई करता हूँ, मेरे घर वाले मुझे यही कहते हैं, मेरे मेंटर्स भी कहते हैं, फैकल्टीज भी यही कहती हैं, यार ये तो टाइम है एक्चुअली, हसल करनी ही पड़ेगी. बिना और लिटिगेशन में लॉ के अंदर हर एक का स्ट्रगल एक पीक पर है. आफ्टर दिस कोविड तो बहुत ज्यादा. सो मेक योर CV एज मच एज इम्प्रेसिव कि एक बार वो एटलीस्ट कंसिडरेशन में आए. कंसिडरेशन में फॉल करना आपकी एप्लीकेशन एक टिक हो जाता है कि एटलीस्ट आपने एक स्टेप तो अचीव किया. उसके बाद आगे देखा जाएगा भाई सिलेक्ट होता है नहीं होता. ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स. अब ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का आज से आने वाले 1 साल के अंदर का ये वर्क होगा. आप जो स्किल्स अपने पीयर ग्रुप के अंदर बनाएंगे, जो प्रोफेशनल स्किल्स आप बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर जा रहे हैं किसी मूव के लिए, किसी भी XYZ इवेंट के लिए आप जा रहे हैं, आपकी स्किल्स जो आपस में प्रोफेशनली डेवलप होगी एट द टाइम ऑफ इवेंट. आपको सोचना कि जब आपको बाहर टास्क दिया जाएगा किसी कंपनी के अंदर, किसी फर्म के अंदर, आप सेम एग्जीक्यूट करोगे. क्लाइंट आपके सामने बैठा है, आप उसका कैजुअल नहीं हो सकते. एक कैजुअल बिहेवियर को आपको साइड रखना है. हर चीज का एक एक्चुअल टाइम है
जो लोग करेंटली लिटिगेशन के अंदर इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, they actually know कि जब क्लाइंट आता है तो चेंबर में कितना भी हंसी मजाक क्यों ना हो रहा हो, आप खाना क्यों ना खा रहे, 2 मिनट सब साइड हो जाता है एंड पिन ड्रॉप साइलेंस के अंदर मैटर ही डिस्कस होता है। करेक्ट? यस और नो? यस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कैजुअल बिहेवियर को थोड़ा सा साइड रख के चलें। ऑलवेज ट्राई टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद योर सीनियर, विद योर बॉस, इवन विद योर मेट्स। ऐसा लगता है कि आप उनके साथ एक्चुअली इंडल्ज हो रखे हो, अदरवाइज ऐसा लगता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो। अगर मैं इनसे बात कर रहा हूँ अभी, मैं करेंटली और कोई रूम में नहीं है, मैं इधर देख के बात कर रहा हूँ, तो कैसा सा फील होगा? सो दिस इज द थिंग वी नीड टू फॉलो कि भाई ये चीज को अब हम छोड़ना स्टार्ट करें। जो पिछले 4 साल के अंदर आपने चीजों को फॉलो करा, अब उसको एक नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने की बारी आ चुकी है। सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैंने पहले ही बताया था, यू नीड टू नो कि टैकल सिचुएशन को कैसे करते हैं, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग जो आपको आगे जाके हर जगह काम आने वाली है। एंड एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक यू ऑल टू नो that you have to choose the first horse among yourself, that is from skill, luck and mercy in the race of your professional life, because only the first one will be with you forever. So इस रेस के अंदर भाई जीतना तो एक ने है, so from luck, mercy और skill it is upon you, आप किसको चूज करते हो, क्योंकि you also know mercy temporary है, किसको पता लक आज कैसा है कैसा नहीं, ठीक है ना? तो स्किल जो होगी वो एट द एंड काम आएगी, शायद आज ना बट कल जरूर आएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर कि स्किल्स हमारी जितनी भी हों वो एक्यूरेट हो, हमसे अच्छी किसी की ना हो, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार। हमसे अच्छी हर एक के पास है, बट खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हाउ विल एक्सेल? एंड दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। लेट तो कभी कुछ होता ही नहीं है किसी के लिए। सो आज जिसने जो स्टार्ट नहीं करा, आज कर जगह स्टार्ट करें। किसी को कोई भी गाइडेंस की नीड हो, हेल्प की नीड हो, आई एम ऑलवेज थैंक यू। Thank you so much, sir, for valuable advice and suggestions. So, on behalf of, so I would like. Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon. आपके क्लास में है, इस क्लास में कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया। I'm not here to teach anything to you. क्लास में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई की बात करेंगे आज। This is a alumni lecture series, so हम लोग इसमें कहीं भी नहीं है। You have already listened of this 2 brilliant students of our college. लेकिन मैं अगर सनत को जानता हूँ, because he is very close to me, and we had one time when we were on initial stage to start moot court practice, and this is the matter of January month. So we were badly searching few students those who have any interest in moot court. लेकिन क्या होता था कि जैसे पीरियड ओवर हुआ, सर अटेंडेंस दे दीजिए, नाउ वी आर गोइंग होम। Nobody was ready to stay after class to do some practice in moot court. So संगत और फ्रेंड होता है, ये इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तो ये दोनों जब भी मैंने इनको बुलाया, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, आफ्टर लेट आवर्स, they were both ready and they both prepared all the procedural rule, prepositions, judgment scenes. और मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा डांट सनत को और ऐना को ही पड़ती थी। और इसके ऊपर जो बच्चे अभी जो एनएमसी देख रहे हैं, अर्षा, देविका एंड नेहा, दे आर नो डाउट दे आर डूइंग वेल। लेकिन इन लोगों के बैच में जो बच्चों ने किया, जैसे काव्या, मृदुल और बहुत सारे बच्चे थे, बट we can remember few students who can very close to the teachers, जो मेरे बहुत क्लोज थे, मुझे वो ज्यादा याद है।